सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सबसे पहले कुंडू, please Yes, do the Maharaj. summary. Yes, Maharaj. Am I This audible, article Maharaj? is a very good article. Yes, I can easily listen to you. Okay, Maharaj. Maharaj, spiritual quest. In the world, we find two types of people. The majority of us indulge in sense pleasure and think that material gain is the aim of life. But there are some people who see through the temporary nature of material comforts and worldly achievements. Like Lord Buddha, they can renounce wealth and power, or like Swami Vivekananda, they can withstand the poverty and helplessness of near and dear ones. They relentlessly pursue the spiritual path with single-pointed devotion and utmost heroism. When the call of the spiritual ideal reaches a man, he cannot but respond to it. This compelling urge to follow the ideal marks the beginning of spiritual life. This conversion from the ways of the world to following spiritual ideals is sudden for some people, but in most of the cases, it is a gradual development. It is true that genuine conversion is not a common phenomenon, as is told in Bhagavad Gita, that out of thousands of people, only a few take to spiritual life, and of them also, one or two only attains superconscious realization. It is the toughness of the journey that makes spiritual life so full of adventures. The author says that since we are fortunate to find the spiritual path, we should strive wholeheartedly to make ourselves fit for spiritual attainments. The great saints and sages of all religion are a storehouse of spiritual wealth, but unlike materially rich people, they are extremely generous in distributing the spiritual wealth among the aspirants. It is a pity that only a few people want it. Since majority is running after material prosperity, the spiritual seeker is by force a minority. He has to lead a life different from others. Sankaracharya, in his oft-quoted sloka, says that spiritual aspiration is a rare blessing attained by the grace of God. But even then, one has to strive hard to achieve the supreme goal of life. That shloka is, just a minute, the shloka is Manushyatvam mumukshutvam mahapurusha sanshayah durlabham trayamevetat devanugraha hetukam manushyatvam mumukshutvam mahapurusha sanshayah. Yeah, okay. Yes, since we have got a flicker of spiritual fire, we must be careful to nurture it. It is a natural tendency to go easy on spiritual practice after rigorously following it for some time. Unless we are tenacious and one-pointed in our efforts, nothing great can be achieved. In life, we really do not know what we actually want. We seek happiness and satisfaction in external objects. But as we achieve something, some other want crops up, and we find that the worldly pleasure is essentially temporary. The permanent happiness is to be sought in our inner self.
though the higher self of a man is inseparable from God, we still feel that God alone is the repository of peace and blessedness. We should consider the body as a living temple and feel the presence of God within. In our prayer, we should never seek worldly happiness, but ask for spiritual illumination and realization. The worldly pleasures, even if granted, will bring troubles along with them. We should be able to forbear adversity with a firm belief that God will raise us from material level to the realm of eternal bliss. We should be aware that God is trying to fool us like a child by providing certain material comforts and achievements. Unless we throw them away and cry for Him, He will not take us in His lap and liberate from the miseries of life and death. We all are given an opportunity to choose the course of our life. If we choose to follow the impermanent sense enjoyments, the result is misery, as the objects of enjoyment will be snatched away from us sooner or later. So, we should choose to live a spiritual life in a spirit of dedication and singleness of purpose. A great energy is required to lead such a life. Many spiritual aspirants fail to attain the highest goal as they are impulsive and do not follow any definite system. In fact, if one is not prepared to attain truth through long and regular training, the glimpse of truth may be unsettling. We must go through the process of spiritual evolution, which is quite difficult and brings suffering to the aspirant. The taste of truth is that it will bring perfect satisfaction. To achieve that, one must struggle hard without getting afraid or discouraged. To have an yearning for God is difficult for us because we take the physical world and our body to be real, whereas it is just the opposite with saints. To go beyond the sense-bound world, regularity and intensity of daily spiritual practice is very important. Purity of thought has a transformative effect not only for us, but on others around us. Very often, we slacken our efforts towards God realization as we feel satisfied with our present state. Thakur has urged again and again not to relax in our spiritual journey. There must be a divine discontentment among us to destroy all attachments to worldly things and desires. In this journey, there is no room for complacency. One can stumble and fall anytime. That is why intense practice and constant prayer and meditation are so important. There has to be unwavering devotion to God. One must do regular practice with perseverance, which is within our control. The rest must be left to the divine in the spirit of true self-surrender. It must be remembered that our capacity to struggle can also be increased with a controlled mind and sincere effort. The lives of saints are very inspiring as the yearning for God realization is fully reflected there. Sri Chaitanya renounced a life of scholarship and spent his days in spiritual inebriation. Prahlad withstood the wrath of his father and embraced all the ordeals
in his ecstatic love for Lord Vishnu. Sri Ramakrishna did intense practice without any care for food or sleep for years together. He made great stress on yearning for God. Again and again, he brought it up as a chief discipline to the aspirants. His disciples also reflected it in their lives. The popular belief is that spiritual practice is for old men to prepare them for afterlife. But once we have understood the nature of spiritual quest, it becomes evident that one must start early in life. The more we indulge in sense enjoyment, the harder it becomes to erase the samskara. Thakur cautioned Swami Vivekananda against meeting Sri Girish Chandra Ghosh. Though the latter was a great devotee, his licentious living stood in the way. In his inimitable style, Thakur said that however much you clean the cup, the smell of garlic won't go away. However, on the request of Girish, he also told a remedy that the smell will go if the cup was heated in a blazing fire. Similarly, the fire of knowledge can burn the past samskaras. One need not worry on the count that life is short and success may not be achieved in this life. In the Gita, the Lord assures that even a little of this discipline saves one from the great fear. One who has seriously struggled in a spirit of self-surrender need not be afraid of even death, as it is not an end, but a change of environment. The infinite, the divine, is always with us. The article ends with a stern declaration: until you fall asleep, until you die, always busy yourself with Vedantic thoughts. Asupte ramrite kalam nayet Vedant chintaya. This is the Sanskrit part. Okay. Thank you very much. Yes. This is a very important and very good article. And I think it is not the summary which is important. This article must be read every day. सब लोगों को इसको ध्यान से बार बार पढ़ना चाहिए. जो लोग साधक हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी व्याकुलता, हमारी तीव्रता सदा बनी रहे, किसी भी प्रकार से कम न होवे. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इस बात आर्टिकल में कही गई. इसके बाद अब क्वेश्चंस ले ले. सुबीर मजुमदार. प्रणाम महाराज जी. My questions, Maharaj ji. First question, Swami Yatishwarananda ji in this article tells us to rouse a tremendous divine discontent. But must not divine discontent come naturally? Unless it comes naturally, how can we be fired up? Yes. तो कभी कभी नेचुरल हो सकता है, लेकिन उसको प्रोड्यूस भी किया जा सकता है. भाई हमारे जीवन में तो डिवाइन कंस्टेंट डिस्कंट कहो या हम साधु बने तो यह नेचुरली नहीं हुआ. हमने तो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो पढ़ना शुरू किया तो हमारा अवेकनिंग आप कहो या जो भी कहो वो सब होने लग गया. तो कई दूसरे प्रकार भी हैं, उपाय भी हैं जिनके माध्यम से डिवाइन डिस्कंटेंट यानी जीवन में असंतोष कि मैं यह जीवन जो व्यतीत कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, यह आता है. और ये जो है वो अधिक स्वाभाविक है. नेचुरल डिवाइन डिस्कंटेंट बहुत कम लोगों में होता है.
जैसा है कि जैसे सोचिए, विचार के द्वारा ये डिवाइन डिस्कम्फर्ट आता है। उदाहरण के लिए ये सोचिए, अरे क्या कर रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा सारा जीवन व्यतीत हो गया है, मृत्यु सामने आई है, किसी भी समय मृत्यु आ जाएगी, इस प्रकार का सोचिए ना। जी जी हम कभी सोचते ही नहीं है, हम अपने धीरे धीरे बनत बनत बनी जाई चलते जा रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन बाद देख लीजिएगा, बूढ़े हो गए हैं, अब वो ध्यान जब भी नहीं हो पाता है, पड़े रहते हैं और मृत्यु आके ले जाएगी। इस प्रकार से वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। ये वैराग्य को बढ़ाने के अनेक उपाय हैं। संतों की जीवनी पढ़िए तो संत लोग तो घोर पड़े हुए थे, वो संसार में पड़े हुए थे, अचानक उनके जीवन में एक कोई कारण हो जाता है, थोड़ी घटना हो जाती है और एक डिस्कंटेंट आ जाता है उनके जीवन में, घोर अशांति आ जाती है और वो निकल जाते हैं। तो वैराग्य की पुस्तकें हैं, वैराग्य शतक है, विचार सागर है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से स्वाध्याय के माध्यम से, विचार के माध्यम से हमें लाइफ ऑफ सेंट, संतों की जीवनी मैंने जैसा कहा, इसके द्वारा डिवाइन डिस्कंट लाया जा सकता है। ये छोड़ दीजिए, ये मत सोचिए कि डिवाइन डिस्कंट हमेशा पहले से ही आता है। जी जी ये महाराज जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा किया है कि तुमने ये प्रश्न किया। हम लोग सोच के चलते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे जीवन में तो कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं। जी महाराज अभी भी जैसे मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये आर्टिकल के लिए स्टडी कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप मुझे उत्तर करने के लिए करना है, तो मुझे इसको देख के पुनः प्रेरणा आई है। मैंने इस बुढ़ापे में भी मुझे लग रहा है कि मुझे खूब साधना करनी चाहिए। जी जी तो ये सारे उपाय हैं जो ऐसा नहीं कि शुरू में हो जाते हैं, हमेशा सारे जीवन हमें लगे रहना पड़ता है स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा, कि हमारा ये व्याकुलता तीव्रता बनी रहे। जी महाराज ओके, जी। ओके महाराज, समझ गए महाराज। महाराज जी, सेकंड क्वेश्चन from page 13-14, last paragraph. How can we love God as much as our children? How to feel that He is dearer to ourselves? याद रखो कि ये जितने भी शास्त्र हैं, जैसे राम को वर्णन करते हैं, कृष्ण का वर्णन है, उनको क्या कहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत। राम को कृष्ण की लीला कितनी अच्छी बताई है, बचपन की लीला बताई है। ये शैतान कृष्ण है, माखन चोरी करते हैं और मटकी फोड़ते हैं और क्या क्या सब करते हैं। राम को का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से कितना आकर्षक बनाया गया है, कैसा आदर्श बनाया गया है। ये जो उपाय है, इसके कारण हमारा मन उनमें जाएगा और हम उनको प्यार करने लग जाएंगे। ये ठाकुर जो बोलते हैं कि वो तो बार बार कहते हैं कि भगवान को वे हमारे अत्यंत निकट हैं। ये श्री राम कृष्ण रिपीटेडली कहते हैं। उन्होंने कहा है ना आपको, इस घटना जो इस आर्टिकल में वर्णन की है उसमें भी है। बलराम से पूछते हैं, बलराम कहते हैं कि इतना पुकारते हो, भगवान का दर्शन तो नहीं होता, लेकिन तुमको इतना प्यार करते हो जितने अपने पुत्र को प्यार करते हो कि नहीं? क्योंकि अरे उनको उतना प्यार करना चाहिए। और उसके बाद में वो कहते हैं कि वो तो तुम्हारे निकट से निकट हैं। और अभी एक घटना हुई है, एक भक्त हैं, उनके पिता की मृत्यु हो गई। वो 86 वर्ष के थे, बीमार थे, पिता की मृत्यु हो गई। और इस बीच ये जो है उनके साथ में ही रहा करते थे। और ये जो भक्त है, ये महिला है, ये वो भी रिटायर हो गई। तो वो रिटायर थी और पिताजी बूढ़े थे, तो दोनों एक साथ रहते थे। और पिताजी को वो धीरे धीरे अपना मित्र जैसा बन गए थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली साथ में रहते थे। और जब मृत्यु हो गई तो उसको बहुत खराब लगा, बड़ा उदास लगा उसको। तो मैंने कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, तुम्हारे मित्र थे वो, अब भगवान को पिता बनाओ और मित्र बनाओ, भगवान को ही पिता बना लो, मित्र बना लो। और सच पूछा जाए तो भगवान आपके पिता और मित्र हैं ही। जी। और ये संतों के जीवन से हमें पता चलेगा कि भगवान हमें बहुत अधिक प्यार करते हैं। जितना हम उनको कभी प्यार नहीं कर सकते, उतना अधिक भगवान हमें प्यार करते हैं।
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसका अनुभव नहीं कर पाते और हमारे मन में ये संतों की जीवनी पढ़ने से, ठाकुर की बात कर पढ़ने से हमें विश्वास होगा और भगवान को पकड़े रहना चाहिए। धीरे धीरे ये चीज हो जाएगी, हम भगवान को प्यार करें। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक। ठीक है। उसका ये है कि संशय और डाउट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन स्पिरिचुअल लाइफ. We have seen it in Swamiji's life too in early days, but unlike our doubt, his doubts were a great yearning to get to the truth. Now, how does an aspirant battle doubt in his spiritual quest, as it is likely to raise its head again and again at various stages of his spiritual journey? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये संशय जो है ये शुरू में भी होता है, आगे बढ़ने पे भी होता है। आगे बढ़ने पे अलग प्रकार का होता है, शुरू में एक प्रकार का होता है। शुरू में ये होता है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाद शुरू किया तो आगे बढ़े तो मैं साधना कौन सी करूँ, भक्ति के करूँ कि ज्ञान की करूँ, इस प्रकार का आता है। आगे गए तो कुछ अनुभव हुआ तो ये सत्य अनुभव है या गलत है, उसके आगे में क्या करना चाहिए, इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। प्रत्येक साधक के जीवन में ये चीज आती है। इसका उपाय यह है, ये शास्त्रों में भी यह है कि संशय रहित उपदेष्टा, एक गुरु या गुरु के समान कोई दूसरा व्यक्ति जो इस पथ पर हमारे से आगे गया है और वो जिसके जीवन में बिल्कुल संशय नहीं है, ऐसे संशय रहित उपदेष्टा के पास जाना चाहिए और उनके पास जाने से ये संशय दूर हो जाते हैं। वे अपने जीवन के द्वारा, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, अपने उद्देश्यों के द्वारा उसको दूर कर देते हैं। दूसरी बात है, गुरु के पास ये हो गुरु और शास्त्र अध्ययन से भी संशय दूर हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कई चीजें बताते रहते हैं और अगर आप नियमित रूप से पढ़ते रहो तो आपको लगेगा कि अरे जो मेरे मन में प्रश्न था वही तो शास्त्र बता रहे हैं। ये बड़ा कई बार मुझे, अब तो खैर बहुत देर हो गई, पहले जो है कई बार मुझे लगता था, कोई भी किताब पढ़ता था, अरे मेरे प्रश्न का उत्तर इसमें मिल गया। तो ये आप करके देखिए, शास्त्र पढ़िए, किसी से पूछ लिया, प्रश्न कर लिया तो वो चला जाता है। गुरु, शास्त्र, और तीसरा उपाय है लगे रहिए। अगर आपको साधना से संबंधित कोई प्रश्न हुआ, लगे रहिए, डोंट गिव इट अप। जी जी, धीरे धीरे लगे रहिए, आप अपने साधना करते रहिए, जो कर रहे हैं प्रार्थना करते ही रहिए, धीरे धीरे संशय दूर हो जाए अपने आप। ओके, ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, भाई। महाराज मैं एक कोटेशन पढ़ सकती हूँ? हाँ हो, बोलो महाराज। इसी विषय पर सेंट तेरेसा का एक बहुत सुंदर कोटेशन मुझे मिला है। किसका? सेंट तेरेसा। हाँ ठीक है, बोलो। लेट नथिंग डिस्टर्ब यू, नथिंग ऑफराइट यू, ऑल पासेस अवे, गॉड ओनली शैल स्टे, पेशेंस विंस ऑल, हु हैज गॉड lacks nothing, for God is his all. ओके, ये पढ़ के मेरे बहुत मतलब उद्दीपन कभी कभी छोटे छोटे कोटेशन से बहुत होता है। पेशेंस चाहिए, भगवान को पकड़े रहो। ओके, हाँ जी, ठीक है दिलीप भाई। अच्छा जी, प्रणाम महाराज जी। बोलो। प्रणाम महाराज जी। माय फर्स्ट क्वेश्चन, इन स्पिरिचुअल एरिस्टोक्रेट्स are always willing to share their riches and others. Now the question is that why this religion fighting is going on between Shia and Sunni, Catholic and Protestants and others in their sect. मेरा सवाल ये नहीं है, मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग भी बड़े संत है और संत रह गए, फिर ये झगड़े इनमें क्यों होते और ये क्यों झगड़ा करवाते? अरे कोई झगड़ा नहीं करवाते, ये संत लोग झगड़ा नहीं कराते हैं, कोई संत लोग झगड़ा नहीं कराते हैं। ये लोग जो धर्म के नाम पे दादागिरी करने चाहते हैं ना, वही कराते हैं और कोई नहीं कराते हैं। और जो स्पिरिचुअल एरिस्टोक्रेट है वो आर्टिकल में ही पढ़ो तो वहीं पे लिखा हुआ है
वहीं पे पढ़ोगे। उसके बाद में कि अगेन पेज नंबर 3 की 2 से 4 चौथी लाइन है कि स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेटर देना चाहते हैं लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है कि नहीं? जी, तो फिर ये लिखा हुआ लाइन में, पर ये भी तो संत होंगे या अरे ये नकली होगा, लोग? ये होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। अच्छा अच्छा, जी जी महाराज। अच्छे उच्च कोटि के संतों में भी तो डिफरेंस होते रहते हैं। हाँ मैं बोलता हूँ मेरा, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो मैं दूसरा बोल रहा हूँ, अपने अपने जी बोलते हैं। ये तो श्री रामकृष्ण इस युग में आए हैं जिन्होंने कहा है कि भाई तुम्हारी बात भी सच है और मेरी बात भी सच है। लेकिन जी उसके पहले तो कृष्ण वाले भक्त जो हैं वो राम के साथ, राम के भक्तों के साथ युद्ध करेंगे। हाँ ये तो हमेशा चला है। इसको यहाँ पे ये स्पिरिचुअल एरिस्टोक्रेसी का प्रश्न क्या आता है? जो बेचारा संत है वो कहेगा कि मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, जी सब अपने आप को भक्त समझते हैं, सब बड़ा बड़ा संत समझ के और झगड़ा कर। जी दूसरा जी हाँ, द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। महाराज ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट, वो मैंने उसमें से 3 सवाल निकाले हैं। द नंबर 1 इज व्हाट इज द सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? देयर इज अ सिस्टमेटिक। और प्रत्येक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के सिस्टमेटिक है। योग शास्त्र अगर करोगे तो उसमें सिस्टमेटिकली तुमको यम नियम करने पड़ेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा। उसके बाद आसन आएगा, प्राणायाम आएगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करना पड़ेगा। ये होगा सिस्टमेटिक। हुआ कि नहीं सिस्टमेटिक? जी अच्छा, अगर सुनो, ज्ञान योग लोगे तो साधन चतुष्टय का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई गुरु होगा तो वो गुरु आपको एक पूरी सिस्टमेटिक चीजें बताएगा, ध्यान कैसे करना, एक ही चीज बताएगा। पहले मुंह हाथ धो के सुबह टाइम पे जाओगे, एक आसन लगाओगे, हमेशा आसन पे बैठोगे, नियमित रूप से करोगे। और किस प्रकार से करोगे? भगवान को पहले प्रणाम करोगे, फिर प्रार्थना करोगे, सबके लिए प्रार्थना करोगे। यह सारी सिस्टमेटिक सिस्टम सभी में तो दी है भाई, इसमें क्या है पूछने की? तो तीसरा नेक्स्ट, हाउ टू बिकम फिट फॉर सच ग्लिम्पसेस? ये इसी के अंदर ही लिखा है। इस साधना से आप फिट हो जाओगे। We must first learn how to become fit for such glimpses so that we can then make them our own for good. हाँ, अपने साधना के द्वारा ये एक्सरसाइज करोगे, ये सब करोगे तो आप फिट होगे, आपको भी ग्लिम्पसेस हो जाएंगे। Right. जी. And now third is spiritual evolution at first brings great suffering to the aspirant, not happiness. In intermediate stages, his life becomes very difficult. What types of problems one has to face in this path? करो तब पता चलेगा, करोगे नहीं और हमसे पूछोगे। अरे हमारे जीवन में हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, संस्कार, इससे स्ट्रगल करना पड़ता है। आदतें बदलनी पड़ती हैं। सुबह हम पहले 7 बजे सोया करते थे, अब सुबह 4 बजे उठने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बैठ के ध्यान करने बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सारा आध्यात्मिक जीवन संघर्ष का है। शुरू में इस प्रकार का शारीरिक संघर्ष करना पड़ता है। आश्रम में रहने हैं तो लोगों की बात सुननी पड़ती है, वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। और जब सीनियर हो जाएंगे तो उसके बाद में भी सब प्रकार की समस्या रहती हैं। तुम भी बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी तो समस्याएं, सामाजिक समस्याएं है ना? जी जी। यहाँ भी समस्या, तो सब प्रकार से समस्या होती है और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि बैठे हुए कुछ नहीं करेंगे और साधु बन गए तो कुछ करेंगे नहीं, मस्ती में ही रहेंगे। जो अंदर की मस्ती है उसके तुलना में बाहर का संघर्ष कुछ नहीं। दिलीप भाई? हाँ बराबर महाराज। इसी के संदर्भ में पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ व्हाट इज स्ट्रगल आफ्टर प्योरिटी। प्योरिटी के बाद स्ट्रगल क्या है? उसके ऊपर की 4 लाइन पढ़ो। एक 4
struggle after, उसके ऊपर की 4 लाइन पढ़ रहा हूँ. Indeed, the havoc we create by our impure thought is far worse than the created by poison gas. By our impure thoughts, we affect people who do not even know impurity. But by our अच्छा, उसके pure और thought, जी ना, उसके बाई इम्प्योर, उसके और 2 लाइन और ऊपर पढ़ो, वहां पे इम्प्योरिटी क्या है लिखा गया. very often we are so careless in this. Without study practice, nothing can be attained in spiritual life. Spiritual life must be a life of dedication to the highest, a life of concentration and sacrifice and one-pointedness. So we should be more wide awake and more careful about our own thoughts, for our own benefit and for the benefit of others to whom our thoughts of lust, greed, or create by our impure thoughts. लस्ट ग्रीड आ गया, तो जी लस्ट नहीं। ग्रीड वायलेंस आ गया ना. जी वो ये नहीं, लस्ट मैं- ग्रीड वायलेंस उसी के बाद आगे चल रहा है. जी नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि एक बार ये- व्यक्ति प्योरिटी पे पहुंच जाता फिर भी ये कभी धोखा दे सकता है? ये तो हमेशा दे सकता है, आखिरी तक. जी इसीलिए कहते हैं छुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के समान है ये मार्ग. जी हाँ, राइट जी महाराज जी. हाँ. हाँ, in spiritual life, satisfaction is very dangerous. At every stage, all the time, we should have yearning for a higher life. At no stage is satisfaction for spiritual aspirants. तो महाराज यहाँ पे संतोष नाम की चीज at no stage we should have. अरे लखपति आदमी को कभी संतोष होता है क्या? नहीं, पर ये वो करोड़पति हो जाता है, जी अरबपति हो जाता है, तब भी पैसे का संतोष होता है क्या? तुम नहीं, संसारी आदमी पैसे जी। में संतुष्ट नहीं होते, तो हम हाँ। आध्यात्मिक संपदा में क्यों संतुष्ट होंगे? ठाकुर को तो माँ जगदम्बा का दर्शन हो गया था, जी उसके बाद में संतोष नहीं हुआ था. फिर चिल्ला रहे हैं बार बार हो जाए, बार बार हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए. जी उसके बाद में उन्होंने दूसरे धर्म की भी साधना की. जी तो ये इस प्रकार के संतोष जो है ना, वो कुछ संतोष ही नहीं है. लेकिन एक ऐसा अद्भुत संतोष होता है, एक शांति प्रशांति होती है कि जिसकी तुलना करोड़पति लखपति इत्यादि से नहीं की जा सकती. ठीक है जी महाराज. संतोष भी रहेगा और उसके साथ में प्रेरणा भी रहेगी कि मैं और करूं. Yes, जी. Next, definitely he corrects his own. महाराज मैं पेज नंबर 13 पे पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड. ओके, यस. वो मेरे पास नहीं है. नहीं मैं पढ़ रहा हूँ. Definitely he corrects his own watch with the sadhus, but what we see, thousands and lakhs of followers of Asaram and Ram Rain and such others have. What is their faith? How to find out sadhus who correct the watch correctly? देखो, हम भी तो साधुओं के पास गए ना. जी हमको आसाराम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी. हमको वह 10-20 लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, 10-20 साधुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी किसके पास जाना. जी हम पहली बार जिस साधु के पास गए थे वो हमें अच्छे साधु मिले. अरे तुम्हारे दिमाग में फालतू बातें होती हैं, इसलिए फालतू साधु मिलते हैं. जितने लोगों को मिले हैं वो इसी प्रकार के मिले हैं. जो आदमी कोई आध्यात्मिक पिपासा नहीं है, वो ऐसे लोगों के साथ पास जाते हैं और उससे फंसते हैं. जो सच्चा साधक है वो सच्चे शिष्य गुरु के पास ही जाता है, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता. तो लाखों लोग जाएंगे, वो क्योंकि वो आध्यात्मिक चीजें चाहती नहीं है, वो तो हो हल्ला चाहते हैं, इसलिए जाएंगे आसाराम बाबू के पास में और किसी के पास. ये तुम वहां कहाँ देखते रहो. नहीं, मेरा सवाल ये था जनरल के, a ordinary man who wants to go on a spiritual life
he has to find out some sect or some sadhu, some महात्मा. तो वो महात्मा के पास हम तो चलेगा, पर हमें थोड़े मालूम पड़ा कि ये भविष्य में क्या निकलेगा साधु. नहीं, लेकिन ये इसलिए कि सुनिए, इसलिए कि आप में वास्तविक आध्यात्मिक जिज्ञासा पिपासा नहीं थी. अच्छा जी. आध्यात्मिक सचमुच व्याकुल पिपासा सच्ची होती तो नहीं जाते वहां पे. अच्छा जी जी. तो देख के उनको पहचान जाते. पहचानने की हमको शक्ति मिल जाती यदि हमारी सही. अपने आप शक्ति का प्रश्न नहीं है, इंट्यूटिवली, ऑटोमेटिकली. जी महाराज. नेक्स्ट. महाराज जी, मैं एक बात बोलूं सर के इस पॉइंट पे. गुरपिंदर बोल रही हूँ. हाँ. तो जैसे हाँ. ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें अपनी आंख बंद करके देखना है कि हमारे डीप में क्या इच्छा है, वो आपको मैग्नेट की तरह उसी की मतलब हमारे गहराई में भीतर में क्या है, इच्छा क्या है असल में. ये सर बोल रहे हैं ना कि हम कैसे ढूंढे. तो जो हमारे अंदर आंख बंद करके हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हमारे गहराई में सच में मन में और दिल में क्या इच्छा मेल हो रही है, तो वो मैग्नेट की सुई आपको उसी गुरु की तरफ पहुंचाएगी. वही तो मैंने कहा उसको. कहीं ना कहीं अगर दुनिया की इच्छा तो वो आसाराम जैसे ही मिलेंगे, अगर सिर्फ प्यार चाहिए तो ठाकुर मिलेंगे. राइट, वेरी राइट. ठीक है. हाँ महाराज. नेक्स्ट. Ultimately, destiny plays its own role. What is destiny? Who writes destiny? And how we can know destiny? वो डेस्टिनी को हम ही बनाते हैं. डेस्टिनी देखो, ये डेस्टिनी और प्रारब्ध जो है ना, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता. ये हमारे डिस्कशन में आना ही नहीं चाहिए. कोई डेस्टिनी नहीं है. डेस्टिनी जो है हमने अपने बनाई है. यतीश्वरानंद जी इस आर्टिकल में जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि हमने अपने इस पुरुषार्थ के द्वारा हम डेस्टिनी बनाते हैं. यस. इसलिए जो है वो डेस्टिनी हमको ले जाती है. हमने अपने पुरुषार्थ के द्वारा हमारे मन को तैयार किया, और अल्टीमेटली वो कहीं पूर्व जन्म में भी हुआ था. इस प्रकार से होती है शुरू में जी. लेकिन एक बार जब आ जाती है उसके बाद में फिर पुरुषार्थ होता है. तो अल्टीमेटली वो डेस्टिनी महाराज जरूर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली डेस्टिनी इज प्रिपेयर्ड बाय आवरसेल्व्स. डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं ना, प्रारब्ध कहो, हमारा जो होने वाला है वो भाग्य. जी. अपना हाथ देख के जो पता लगा लेते हैं, बताते हैं ना, वो भाग्य जो है वो हम ही बनाते हैं, अपना ही बनाते. जी. चलिए. राइट. ये महाराज. अब ये हिंदी का एक पैराग्राफ था. हमने पर्याप्त प्रगति कर लेने तक अपनी शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा करके बहुत अधिक खतरा मोल नहीं लेना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग? अरे खतरा नहीं लेना चाहिए. नहीं, तुम्हें बिजनेस में अगर हो, बिजनेस में पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना हो तो सावधान रहो. नहीं, इन्वेस्ट नहीं करो कि पैसा डूब जावे. नहीं महाराज जी, पर्याप्त ऐसा है कि थोड़ी प्रगति करो, उसके बाद पता चलेगा जी. ध्यान होने लगेगा. हाँ. लगेगा कि ध्यान लंबा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, वासना आ जाती है. तो उसके लिए कहते हैं प्रगति करने का, कि फिर से पढ़ो तो. जी. हमें पर्याप्त प्रगति कर लेने तक अपनी शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा करके बहुत अधिक खतरा मोल नहीं लेना चाहिए. हाँ, तो पर्याप्त प्रगति पहले मतलब समझो. पहला पर्याप्त प्रगति क्या है? जी. हाँ. तो पातंजल योग सूत्र में उसके 5 लक्षण बताए हैं. जी. एक यह है कि मन अंतर्मुखी हो जाता है. हाँ. दूसरा, मन में प्रशांति शांति आ जाती है. जी. तीसरा, मन एकाग्र हो जाता है. और चौथा, और विशेष ज्ञान उसको प्राप्त होता है. जी. और पांचवा, जिस किसी इच्छा वस्तु है उस पर वो मन को एकाग्र कर सकता है. ये दे बिकम काफी टेक्निकल चीज. अगर मन आपका शांत और पवित्र हो जावे, जी. उसमें बुरे विचार नहीं आने लग जावे,
तब हाँ। समझना कि आपने प्रगति कर ली है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना। जी बात है। स्वामी विवेकानंद या और किसी ने, एक संत है, बड़े संत ने, उन्होंने कहा है कि हाँ। मैं 40 वर्ष की तपस्या के बाद में, साधु की तपस्या के बाद में भी 40 दिन अकेला नहीं रहूंगा। जी यानी अकेला रहने में मेरे को टेम्पटेशन, वासनाएं आ सकती हैं, प्रलोभन आ सकते हैं। जी इसलिए ये कहते हैं कि कभी भी अपने को बहुत अधिक पहलवान मत समझो। संसार में वासनाएं, प्रलोभन, टेम्पटेशन कभी भी आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। जी बहुत बराबर माना। हाँ, और आखिरी सवाल है, शुड वी नॉट प्रे फॉर द यूनिवर्स? महाराज ये ठीक है, प्रार्थना के बारे में है। हाँ, प्रार्थना के बारे में है कि यदि हम, तो आपने ये कहा कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना कि नहीं करना? हाँ बस ये मेरा सवाल। नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना तो अच्छा है, लेकिन यह जो विषय है, जी जो चल रहा है, वो एक व्यक्ति की साधना के बारे में चल रहा है, इसलिए वहां पे प्रार्थना की बात नहीं आई, जी दूसरों के लिए प्रार्थना की बात। हाँ, ये लिखा है, प्रार्थना करते समय कभी सांसारिक सुख की बात नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन ठीक है, सांसारिक यही है, व्यक्तिगत बात हो रही है। ओके, ये सारे बराबर। अध्याय में किसी भी जी। प्रकार की बाहर लोगों के कल्याण या शिव ज्ञान से जीव सेवा की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए यह बात नहीं कही। नहीं, जी महाराज प्रणाम। अच्छा, इतु घोष। प्रणाम महाराज। महाराज हाँ भाई, सॉरी तुम्हारा महाराज, ओके हाँ, लास्ट क्वेश्चन ले लो। लास्ट वीक मेरा फोन क्रैश कर गया था, इसलिए हम कांटेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, अभी ये प्रश्न इस बार का है, फिर बाद में हम वो पुराना वाला भी पूछेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, if someday through our spiritual striving God comes to be a reality, what is this reality? आगे और भी लिखा है ना तुमने, वो वहां पे स्वामी। Does it mean that we have a feeling God is with us or helping us all the time, or is it God realization? No, you see, that is not God realization. बोलते हैं कि भगवान becomes more real. उदाहरण के लिए, जब आप मंदिर में जाते हो और एक सड़क पे घूमोगे, आप जिसने बाजार में जाओगे और मंदिर में जाओगे, वहां पर God appears more real, isn't it? Yes. है ना? मंदिर में फीलिंग हाँ ज्यादा होती है, होता है, गॉड बिकम्स मोर रियल, ये रियलिटी की बात हो गई जी। काशी में आओ तो काशी में ये लगता है कि यहाँ पे भगवान इज मोर रियल, समझे जी? मतलब ये है, ये रियलिटी का एक पहला एक्सपीरियंस, पहला लेवल। इस स्थान पे जाओगे, किसी व्यक्ति से मिलोगे, तो तुमको कोई संत से मिलोगे तो गॉड बिकम्स मोर रियल, ठीक है? तो ये धीरे धीरे आगे जाने लगता है ना जी। और संत लोग जो हैं उनको और अधिक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, दर्शन होने लग जाता है जी। ठाकुर को लगता था कि मेरे पास भगवान हमेशा है। तो ये धीरे धीरे एज यू प्रोसीड, गॉड बिकम्स मोर एंड मोर रियल टू अस। ओके जी, गॉट द पॉइंट? जी समझ गए। और सेकंड क्वेश्चन है, अनलेस वी आर एबल टू राउज इन द सोल दिस डिवाइन डिस्कंटेंट which can destroy all our attachments to worldly things and desire, how we will realize that we have actual divine discontent? अरे भाई, ये जो अगर देखो, तुम्हें एक किसी किताब वस्तु को चाहिए, आपको एक फ्रिज खरीदना है,
और उसके लिए आपके जीवन में डिस्कंटेंट आ गया। इसको समझ सकते हो ना? जी। हाँ, हम्म। तो अब भगवान के लिए डिस्कंटेंट को क्यों नहीं समझ सकते? अरे मेरे को भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, ठाकुर बार बार कहते हैं दर्शन नहीं हुआ है, मुझे तो हो नहीं रहा है। हमारे जीवन में डिवाइन जी। डिस्कंटेंट हम लाने नहीं देते हैं, दुर्भाग्य है हमारा। जी। संसार में मस्ती में है हम। हाँ, ये तो बात। यू कैन इमीडिएटली फाइंड आउट कि हमारे जीवन में डिस्कंटेंट है कि नहीं। जी। जी साहब। और थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर अदर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस where they can continue their spiritual quest. So if they have lived an intensely spiritual life while alive. So my question is, what is this other planes of existence? देखो ऐसा है कि ये अब इसमें क्लियर नहीं है, और अदर प्लेन्स में दो चीजें मेरे दिमाग में आई, यानी और ये बात लिखी है उन्होंने मृत्यु के बाद की बात है, यानी आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ क्या है? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। अगर आपको इस जीवन में प्राप्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में आप ऐसे लोगों के जन्म हो गए जहां पर आध्यात्मिक साधना तुम्हारे लिए परिस्थितियां आसान हो जाएंगी। श्रीमती धनी लोगों के लिए, और वो लोग सज्जन हैं, वो धार्मिक हैं, तो वहां पर साधना की तुमको सुविधा मिल जाएगी। या फिर कहो तो अदर प्लेन्स में फिर रामकृष्ण लोग बोलना पड़ेगा। इसके अलावा मैं नहीं समझता, मैं नहीं कह सकता कि ये क्या अर्थ है। जी। अच्छा, अब मैं लास्ट वीक का क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ। अपने पुत्र का यौवन ऋण किया था, ये किस प्रकार संभव होता है? लेने वाले का अपने प्रारब्ध का क्या होता है? साधारण मनुष्यों के लिए भी क्या ये दान या ऋण संभव है? वो ये किसने किया था? ययाति ने किया था ना? जी जी। तो ये जो है भाई, ये जो एक देवी प्रक्रिया है, ये डिवाइन है। ये हम नहीं कर समझ सकते किस प्रकार से होता है, हम लोग नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, उसके बाद में ये प्रारब्ध उसके पड़े रहेंगे। वो ये बिल्कुल ऑन दिस थोड़ा सा बाई साइड ट्रैक हो गया है, लेकिन वापस आएगा, प्रारब्ध उसको भोगना पड़ेगा ही। चाहे कितना भी इधर उधर से मदद मिल जाए, लेकिन प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। सेकंड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, विस्मृति के क्षणों में अशुभ विचारों के साथ तादात्म्य होने के कारण बिना कोई बुरा कर्म किए भी हम उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बिना कुछ अशुभ कर्म किए ये किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? बुरे संगत के कारण, बुरी संगत के कारण। टीवी देखो, नॉवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर में देखते रहो, तो गंदी विचार, गंदी न्यूज आएगी, तो उसका प्रभाव क्या दिमाग में नहीं पड़ेगा? जी, जरूर पड़ेगा। उसमें क्या है, वो तो जरूर पड़ेगा, उसका दिमाग पड़ा। ये एक प्रकार से तुम अपने मन को गंदा कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो। तो उसमें प्रारब्ध क्या, वो सब अपने आप आ जाता है, सब आ जाता है। हमारे मन के अंदर सारी चीजें हैं, वो आ जाती हैं बाहर। जी। और थर्ड क्वेश्चन है, यदि हमारी साधना हमारी निम्न प्रकृति को, वासनाओं की जड़ों को अधिकाधिक प्रकाश करती है, तो हम उन्हें हतोत्साहित नहीं, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। किस कारण ये होता है? ये क्वेश्चन है। इसके प्राबल्य को किस प्रकार प्रतिहत किया जाए? ऐसा है कि जब हम साधना करते हैं तो ये कहा है महाराज ने कि साधना करने पर क्या होता है कि हम अपने मन को जानने लग जाते हैं, और हमारे पता चलता है कि हमारे भीतर बहुत सारी बुरी वासनाएं पड़ी हुई हैं। पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन साधना करने से तो मन मानो और भी खराब हो गया। इसमें हतोत्साहित नहीं होना है।
ये बाहर आ गई हैं, हमको पता चल गया है। तो अब उसका प्रश्न क्या है तुम्हारा? प्रश्न है कि किस कारण से ये होता है और क्यों वो तो इसके अंदर है। प्राबल्य को किस प्रकार प्रकट किया जाए। नहीं, उसको प्रबल साधना लगे रहने से वो प्रबलता कम हो जाती है उनकी। अच्छा, ठीक, प्रणाम महाराज, हो गया। अच्छा, अब आइए देवाशीष साहा। हाँ, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। इसमें से आई हैड 11 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट आई फाइंड 1 2 3 4 5 6 7 have already been answered in a various forms. Now my second question, what are the highest superconscious realization as mentioned in page 2? अरे तुम रियलाइजेशन की बात कर रहे हो, मैं तुमसे पूछूंगा, तुमसे मैं ये पूछता हूँ कि तुमने लड्डू खाया है, कैन यू डिस्क्राइब टू मी? अच्छा अच्छा, समझ गया महाराज। हाँ, समझ में आया महाराज। अरे खाने पे भी एक्सपीरियंस करने के बाद में भी हम लड्डू को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और तो हाईएस्ट रियलाइजेशन तो हमको होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, तो उसको डिस्क्राइब करने का प्रश्न ही कहाँ होता है। हाँ, समझ में आया महाराज जी। हाँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। सुपर कॉन्शियस में मतलब है कि वी हैव टू रेज आवरसेल्फ फ्रॉम द कॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस। Yes, yes, it is out of question, no question of talking about it. अच्छा, एंड एक आर्टिकल है इसके बाद में था, द आइडियल ऑफ सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये तो शरण आर्टिकल है। मैं सोच रहा था कि उसको भेजूं, मैंने कहा कि बड़ा हाई हो जाएगा। मैं देखूंगा एनीवे, ये मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ में है ये। अच्छा, तो द आइडियल इज टू गो टू द सुपर कॉन्शियस स्टेट, ए कॉन्शियस लेवल सबकॉन्शियस से ऊपर जाना है, बट यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट लाइक दैट। सो इसी श्री रामकृष्ण कहते थे, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देखो मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ लेकिन उनका मुंह बंद हो जाता है, माँ मेरा मुंह बंद कर देती है। लेकिन मुंह क्या बंद करती है? वो ऐसी चीज है जो मन से डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तो वहां पे माइंड नहीं जाता है, माइंड के ऊपर माइंड के ऊपर भी एक्सपीरियंस है, उसको आप माइंड के लेवल पे, सेंसेस के लेवल में आज कर कैसे पूछ सकते हो? So there is no point in this question becomes a rather irrelevant. Okay, Maharaji. Understood, Maharaji. Next is that happiness, as it is ordinarily understood, is the real index of spiritual life. Huh? Whatever spiritual progress or realization, spiritual happiness is of a different kind, and it is the peace of God which passes all understanding. Kindly explain. How can you explain again the same thing? Oh, acha. You cannot explain, and do it and yourself will realize. Okay. Same thing. ये fifth है ना, fifth number है के तुम्हारा question. समझ में आ गया सर, महाराज जी समझ में आ गया. But this is your fifth number ना? This is fifth one. Okay. Sixth one is that we should try to live a spiritual life knowingly, consciously, deliberately, in a spirit of dedication and singleness of purpose. This talks about free will. Do we have free will? We have our duties. Sometimes we do not get time to do japa and meditation in right time. So free will से हम कर सकते हैं क्या? It is तुम्हारा प्रश्न ये है कि आप बोल रहे हैं कि ध्यान जब करना चाहिए, हमारे उसके लिए फ्री विल की आवश्यकता है। हमारी विल तो अब फ्री है ही नहीं, हम संसार में फंसे हुए हैं। Exactly. और तो फिर क्या है भाई, अपनी शरणागति करो। आप साधना नहीं कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, तो शरणागति करो, भगवान जैसा कराएंगे वैसा करेंगे। अच्छा महाराज, अच्छा। हरिश्चंद्र घोष को मिला था तो उनका तो पुत्र भी मर गया था, तो उनको रोने की भी परमिशन नहीं मिली थी। याद रखिए, इतना आसान नहीं है। हमें इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति में ये बात। दूसरी ये है कि आपको अपने खाने पीने का टाइम तो है बराबर मिल जाता है, लेकिन ध्यान जब जो है बराबर टाइम पे नहीं हो पाता।
संसार के लोग पत्नी पत्नी माता पिता उनके लिए जो हमारी ड्यूटी है वो फुलफिल करते हैं, लेकिन भगवान के लिए ड्यूटी है वो नहीं करेंगे। ये क्या बात? भगवान को हमने सेकेंडरी बना लिया ना। भगवान है ही नहीं, वो तो सेकेंडरी है। चलो आज जब किया नहीं किया, आज नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला, खाने का टाइम नहीं जाता है आपका, टाइम खाने को टाइम मिल जाता है, लोगों की सेवा करने का टाइम मिल जाता है, बच्चे को देखना है, वाइफ को देखना है, माता पिता की सेवा है, सब पे टाइम मिल जाता है, उसका टाइम है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को नहीं करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। अरे संत लोग जो हैं वो संसार की ड्यूटी की परवाह नहीं करते थे। तो संत तुकाराम को देखो तो संसार उन्होंने सारा बर्बाद कर दिया था, वो भगवान में ही डूबे रहते थे, निरंतर भगवान में डूबे रहे। पढ़ के देखना वहां पे अपने खातों में वो कौन थे, वो कमलाकांत होते, खाते जो होते थे उनके अकाउंट खाते में वो भजन लिख डालते थे। But is it true? भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, is it true for the householders life? Like हम लोग का शाम के टाइम में कुछ कहीं जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, जो वो था ना संत तुकाराम जो थे, तो उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, और वो ऐसे डूबे रहते थे कि बस। राम प्रसाद कमलाकांत ये भी मैरिड थे। सब पढ़ो ना संतों की जीवनी, कितने संत हैं जो गृहस्थ कहाँ, सन्यासी कहाँ हुए, गृहस्थ थे। यस महाराज जी। तो ये दिस इज ए, तो ये प्रश्न हो जाएगा कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ ही की क्या आवश्यकता है, संसार में रहो। ठीक है, चलो। Maharaj, last one. Yes, all in the world of spirit, you are often find people with a chaotic brain. Are you talking about that the guru and the spiritual practices have to be done as instructed by the guru? I mean, people who have not got a guru, they are getting chaotic, or what is it like? भाई इधर वहाँ पे क्या गुरु का तो लिखा ही नहीं है। नहीं, this is my question, Maharaj ji, कि नहीं उसको read last paragraph, page number 6, no mention of guru. Even if it's a guru भी जो होगा तो भी तुम्हारा मन chaotic हो जाएगा। अगर 100 बार बताएंगे तो भी वो लोग नहीं करेंगे। गुरु को बीच में मत लाइए, गुरु होने से भी कुछ नहीं होता। नहीं, chaotic इसलिए होता है, मैंने किसी को डिसिप्लिन फॉलो नहीं, chaotic होता है कि वो कोई नियम को फॉलो नहीं करते। ओह अच्छा। एक ज्ञान जब का नियम है, अपने आध्यात्मिक जीवन का नियम है, गृहस्थों का भी नियम है, और सभी धर्मों में नियम है। क्रिश्चियनिटी भी है कि किस प्रकार से गृहस्थ को रहना चाहिए, जैनिज्म में है गृहस्थ को कौन से नियम पालन करना चाहिए, अनुव्रत पालन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इन सब को पालन नहीं करेंगे, मन chaotic होगा नहीं तो क्या होगा। दिन भर टीवी के सामने बैठे रहेंगे, सब न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, गप करते रहेंगे और कहेंगे कि मन chaotic नहीं हुआ। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू महाराज, थैंक यू। गुरु भी हो जाएगा तो किसी तरह से सुबह शाम 108 माला किसी तरह जप कर लेंगे, बस खत्म। कुछ नहीं होता, गुरु से क्या लेना देना। ओके, थैंक यू महाराज, थैंक यू। प्रणाम महाराज। और कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं, बाकी सब आंसर्ड हो गया। अच्छा, सतीश विग। बोलो ना महाराज। Maharaj, first question. Siddhartha did not himself suffer, but only saw the plight of people around him and became Buddha. Despite undergoing the suffering ourselves, how is that we are unable to follow the path shown by Lord? क्या कौन सा है पहला क्या आपने कहा? जैसे सिद्धार्थ ने खुद he was not himself suffering, but only saw the plight of people around him. हाँ, समझ गया। क्योंकि सिद्धार्थ जो था, हम लोग सेंसिटिव नहीं है, एब्सोल्युटली डल। सिद्धार्थ तो इतने सेंसिटिव थे, समझ गए आप। कोई व्यक्ति होवे, अगर किसी को आप
अरे साले क्या कर रहा है तू, इतना बोल दिया तो इतना बुरा लगेगा कि बस। और दूसरा व्यक्ति है, उसको माँ बहन की गालियां दे दो, रोज दे दो, मारो, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है हमारे मन की। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हैं कि सुबह शाम चाटे खा रहे हैं, संसार में भोग में फंसे कष्ट पा रहे हैं, लेकिन उसी में मजा आ रहा है। हर साल बच्चे, वो ठाकुर बोलते हैं ना कि हर साल बच्चे मर रहे हैं, हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं। खाने को नहीं है लेकिन बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। संयम नहीं है, वैराग्य नहीं है। बुद्ध के ऊपर तो टेम्पटेशन भी आए थे, उसके बाद में ना मार का आक्रमण हुआ था, और फिर भी उन्होंने सहन किया। लोग तो जरा सा एक लड्डू भी दिख जाए ना तो हमारा सारा संयम गायब हो जाता है। तो बाबा बुद्ध से क्या तुलना करना, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, विचार करके अपनी वासनाओं को कम करना पड़ेगा, जिससे हम सेंसिटिव हो सके। हो गया महाराज? बट वी डू नॉट सीम टू हैव एनी ऑप्शन महाराज। हमें जो सेंसिटिविटी तो होती है, लेकिन भाई डू नॉट सीम टू हैव एनी ऑप्शन। ना ऑप्शंस का क्या मतलब है ना, यू हैव टू सी। अरे भाई आप ऐसे संसार में हो कि आप चाहो भी तो सन्यासी नहीं बन सकते। We see the people suffering, but we can't do anything. We have see ourselves suffering, but we can't do anything. भाई ऐसा है कि गृहस्थ संत भी हो गए हैं, वो भी बिना, वो तो भगवान के बिना रह नहीं सकते थे। अपना जो, मेरा ये कहना है कि जितना आपका समय मिले उतने समय में भगवान का भजन करो, मन भगवान में लगाने का प्रयत्न करो, कम से कम इतना तो करो। जी महाराज, जी महाराज। तो जितना हो सके उतना करो। तो क्या होता है, मेरा ये वो है सिद्धांत है, या सब बोलते हैं कि अगर जितना टाइम मिला है, जितना अवसर मिला है, उसका आप पूरा उपयोग करोगे तो और अवसर मिलेगा आपको। उपयोग नहीं करोगे तो जो मिल रहा है वो अवसर भी नहीं मिलेगा, और आप बोलते चले जाओगे अवसर नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, अवसर। अरे जितना अवसर मिला था उसका उपयोग नहीं किया आपने, जितना टाइम मिला था उसको बर्बाद किया। अब क्या मिलेगा भगवान, और क्या? जी महाराज, जी महाराज, क्या बर्बाद। तो आप अगर आश्रम में जाके भी रहने लगोगे ना तो वहां भी टाइम बर्बाद करो। जी महाराज, जी महाराज। महाराज सेकंड क्वेश्चन, divine discontent. But there is no doubt a widespread discontent in our lives, but it is both worldly and divine. Worldly we are, divine we are discontent. Hence there is no real peace in our minds. How can this discontent be converted into higher of life? कि संसारी डिस्कंट को धीरे धीरे कम कीजिए। जी महाराज। तो वो जैसा है ना कि थोड़ी सी अगर छोटा मोटा भोग हो तो उसको विचार करके नष्ट कर लीजिए, और बड़ा विचार है उससे दूर रहिए। डिस्कंट को बढ़ाइए नहीं, संसारी डिस्कंटेंट को, और और जो संसार आध्यात्मिक डिस्कंटेंट है उसको बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। बाबा हम लोग क्या है ना, हम मंद अधिकारी हैं। हमारे जीवन में तीव्र व्याकुलता, तीव्र वैराग्य नहीं होता। विचार के द्वारा उसे बढ़ाना पड़ेगा, जीवन में तीव्र व्याकुलता लाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ होगा नहीं। चलिए जी महाराज, प्रणाम। कुंडू, कुंडू, Maharaj, I had two questions, but Subir Majumdar has asked about spiritual quest. So that question is discussed there. And higher and highest ideal, Devashish Shah has asked, and there that question is also solved. तो हो गया तुम्हारे क्वेश्चन? हाँ महाराज, मतलब मीन्स स्पिरिचुअल क्वेस्ट को अपना कॉन्शियस रीजनिंग के साथ ही बढ़ाना चाहिए। अगर पास्ट इंप्रेशन ना भी है, बचपन से हम वैराग्यवान नहीं है, फिर भी वो बढ़ाया जा सकता है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ महाराज। उसने भी कहा है, पहले सुबीर ने पूछा है या जो किया है,
कि भाई जहां तक हो सके पास्ट इंप्रेशन को मत लाया करो। don't bring prarabdha etc. Yes, Maharaj. I don't like. Yes, Instead Maharaj. of that, जैसे हो जिस सिचुएशन में उसमें सेल्फ एफोर्ड करो, रीजनिंग करो. Yes, That Maharaj. is very important. Okay. Yes, Maharaj. और दूसरा प्रश्न में भी तुम्हारा क्या था? दूसरा एक है ना, महाराज, क्या है तुम्हारा दूसरा? हाँ, दूसरा क्वेश्चन इज वी आर टोल्ड टू स्ट्राइव फॉर द हाईएस्ट, बट ये महाराज एकदम प्रैक्टिकल है. इन मेडिटेशन इट इज बेयरली पॉसिबल टू गो बियॉन्ड द इमीडिएट सराउंडिंग. बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत इमीडिएट सराउंडिंग्स को भूल सकते हैं. वी थिंक ऑफ द ब्लिसफुल फॉर्म ऑफ ठाकुर. सो इससे आगे क्या होगा वो तो समझ में नहीं आता है. हायर और हाईएस्ट आइडियल क्या होगा, इतना ही तो हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, बहुत हाई लगता है महाराज. वो तो ठीक ही बात कहते हो. तो मैं थियोरेटिकली तो हाईएस्ट हाई और हायर हाईएस्ट का होगा. हाई हुआ धारणा, हायर हुआ ध्यान और हाईएस्ट हुआ समाधि. तो धारणा ध्यान समाधि जो पातंजल योग सूत्र में है ये हाई हायर हाईएस्ट होगा. अच्छा महाराज. So that is a theoretical reply. It is only a theoretical reply. The point is that you struggle. Yes, महाराज. You will find that 5 साल पहले जैसे थे उससे ज्यादा हमको हायर हो गए हैं. इतना तो हो जाएगा ना. ये तो 5 साल प्रैक्टिकल जैसे मन एक्सपीरियंस, की- ये तो एक्सपीरियंस है महाराज. यस. ओके ओके. अच्छा निवेदिता. पहला महाराज पहला प्रश्न है, पहला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. तो या भाई ये मैं सब नहीं जानता इतना सब चीजें. ये अच्छा. मेरे समझ की बाहर की बात है. रिलीजन तो ये छोटा मोटा धर्म उसी को कहेंगे ना महाराज, जो आचार रिलीजन विचार. एक बड़ा व्यापक हो गया. हाँ, रिलीजन व्यापक हो गया. अच्छा. उसमें विश्वास भी हो गया, रिचुअल भी आ गया, शास्त्र भी आ गए, उसमें मिलाकर. क्रियाकांड भी आ गया, यात्रा भी हो गया, सब कुछ आ गया. ये रिलीजन हो गया. अच्छा, और स्पिरिचुअलिटी केवल भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, वो स्पिरिचुअलिटी. मतलब इंडिविजुअल लेवल में होगी स्पिरिचुअलिटी और व्यापक नहीं, में नॉट होगी. नेसेसरी. अगर इंडिविजुअली में क्रियाकांड करता हूँ, दान देता हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हुआ. अच्छा अच्छा. इट इज नॉट इंडिविजुअल. इट इज एक आदमी, एक मैन में बी प्योरली रिलीजियस बट नो स्पिरिचुअलिटी. अच्छा. वो ध्यान जप करता है, वो अपने वो दान देता है, क्रियाकांड करता है, तीर्थ जाता है, भगवान का नाम थोड़ा सा ले लिया, पूजा कर लिया, तो वो रिलीजियस है, लेकिन हो नो गया. स्पिरिचुअलिटी. जी. दूसरा प्रश्न है जो ये स्मेल ऑफ गार्लिक विल गो इफ द कप वाज हीटेड इन द ब्लेजिंग फायर. इज इट पॉसिबल टू गेट दिस ब्लेजिंग फायर सो क्विकली. ये मेरा प्रश्न है कि जैसे कि अरे भाई ऐसा है कि ये सब ठाकुर ने किसको कहा? गिरीश घोष को. क्या कहा था? ब्लेजिंग फायर किस चीज की फायर है ये वहां पे? ज्ञानाग्नि की ब्लेजिंग फायर है ना, ज्ञान की. है? ज्ञान की. हाँ. तो अब ये साधना के द्वारा हो सकता है. हाँ. यानी प्रश्न ये है हाँ. कि हम गार्लिक, बात ऐसी है ना कि वो गिरीश चंद्र घोष, तो ठाकुर ने उसको आदमी को दूसरे को बोला. हम जो ये गार्लिक हमारे जीवन में जो गार्लिक की गंध है ना, हाँ जी, वो गार्लिक की गंध को हम चंदन की गंध समझते हैं. ठीक है. हम उसको जाना हटाना नहीं चाहते हैं. हाँ. ये संसार की गंध जो है ना, वही अच्छी लगती है. पैसे की, बैंक अकाउंट की, बच्चों की, सन्स ग्रैंडसन की, ये जो है, ये गंध जो है वो हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम उसमें आग नहीं डालना चाहते. वैराग्य की आग, विचार की आग, उससे ये सब नष्ट हो जाएंगे. हम नहीं चाहते इस चीज. हम चाहते हैं कि अरे बनी रहे, थोड़ी सी गंध चली नहीं रहेगी तो फिर कैसे चलेगा.
ये तो गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के पास में आ गए, पहले तो गंध थी ना उसको, वो तो वेश्यावृत्ति करते थे, उसको अच्छा ही लगता था, बाद में गंध हो गई वो, और ठाकुर ने बाद में उसको किया। लेकिन हम जो है, हम ये संसार की गंध को बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए हम उसमें आग, वैराग्य की आग और ज्ञान की नहीं आग लाना। का अब तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज, हेलो बोलो। हाँ, तीसरा हेलो। प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग स्ट्रगल इन स्पिरिचुअल लाइफ? सीरियस स्ट्रगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियसली स्ट्रगल, सीरियस स्ट्रगल करने के लिए कह रही है। हाँ, सीरियस स्ट्रगल इन स्पिरिचुअल लाइफ, पेज नंबर 15 में जो है। हाँ, अभी इतनी तो बातचीत हुई, मतलब सीरियस Serious साधना struggle। कैसे की जाए। हाँ, सीरियस स्ट्रगल की बात क्यों करते हो? सीरियस स्ट्रगल तो बड़ी भयानक चीज है। व्याकुलता होगी, उसके बाद में अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करने में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। मन को एकाग्र करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है ना, मन एकाग्र होता ही नहीं है। और फिर वासनाएं हैं संसार की, उनको दूर करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये सब सीरियस स्ट्रगल हो गई, ये कठिन है ना, इसी को क्लिक सीरियस। चौथा प्रश्न तो ऑलरेडी आपने जवाब दे दिया है, और लास्ट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू कॉम्बैट फ्लैगिंग एंड बिकमिंग स्लैक। हम लोग स्लैक, थोड़े दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलेगी, बाद में अपन जो स्लैक हो जाता है ना, तो उसको कैसे दूर करने का, ये प्रॉब्लम। अबे संडे के दिन जो क्लास होती है, उसके बाद थोड़ा सा जोश आ जाता है। हाँ जी जी, 24 घंटे के बाद में फिर जोश चला जाता है, फिर वैसे ही कि वैसे। हाँ, वो ऐसा करना, ये जो इसका रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्ड करके रोज ना, तो रोज बार बार तुम्हारे सुनो। को जोश आ जाएगा। ठीक है। अरे वचनामृत पढ़ो, वचनामृत ठाकुर बार बार कहते हैं, निरंजन से कहते हैं, अरे निरंजन निरंजन समय चला जा रहा है, रोते हैं। ठाकुर का सारा ठाकुर का मैसेज है व्याकुलता व्याकुलता व्याकुलता, उसके सिवा कुछ है क्या? इतना रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हमारी वही हालत है, जब पढ़ते हैं उसका 1 घंटे तक विचार रहता है, फिर चला जाता है। अब क्या कोई एक भजन अगर मान लो हमको व्याकुलता ला रही है, तो उसको खाली रिपीट करते जाए तो अच्छा होगा ना महाराज? हाँ, करो ना, जिस चीज से व्याकुलता हो उसको बराबर करो। हाँ, फिर थोड़ी बाद उसके बाद दूसरा चीज आ जाएगी। एक वो है ना, हरि रस मदिरा पिए मानस मंदिर, उसी को बार बार अगर रिपीट करते जाए तो अच्छा होगा। डूब 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 रूप सागरे हमार मन। हाँ 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 जी महाराज, वो भी तो अच्छा है। हाँ जी, कत दिन होबे प्रेम संचार। हाँ ना तो तुम्हें, और वैसा बना स्वामी विवेकानंद अच्छे अच्छे भजन गाया करते थे इस तरह। हाँ जी महाराज, ठीक है, ठीक है, प्रणाम। रीता, रीता विश्वाल है? Yes, Swamiji. बोलो। This all that I want to know is, I'm already taking some precautions, but what precautions should I take not to become slack in my spiritual life? Not to become slack. Flat. Eh? Yes. Flat. Not to become relaxed and slack in my spiritual life. This whole thing has been discussed today. The whole subject is that. Yes. Whole subject is that. Yes, Swamiji. वो constantly you have to think, अरे my life is going away. Any day death might come. I have become old. Whatever I achieved in life,
Within Yes, 5 Swamiji. years, I must do something. So go on telling this to you. हाँ ऐसे लोग जो है डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं और दूसरे भी भक्त हैं जो तीव्रता से साधना करते थे, जीवनी इत्यादि पढ़ो, इस तरह से होता रहेगा। यस स्वामी जी, ठीक, यस स्वामी जी, थैंक यू स्वामी। और कोई बचा तो नहीं? महाराज जी मेरा है आज। हाँ? मैंने कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन ही जैसे ही है जैसे वैराग्य का आज है ना, ये बात होती है तो हाँ। जैसे वैराग्य तो जैसे कांस्टेंट सफरिंग्स भी कह लो या जैसे भी वैराग्य तो मन में आ जाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा उसकी कहते हैं कि अत भी हो जाए, तो जैसे सोशल लाइफ में है हम, सोशल लाइफ में कहीं आना जाना पड़ जाए, किसी उसमें भी जाना पड़ जाए, वहां पे भी अंदर मतलब वहां पे कनेक्ट ही नहीं हो सकते। वहां जाके वो सबके बीच ऐसे लगेगा कि अरे हम तो कहाँ आ गए, किसके बीच आ गए, और उनके साथ मिक्सअप होना या वो चीज अब उसमें डिफिकल्टी आने लग गई है कि ये तो होगा, ये डेफिनेटली होगा। वहां जाके भी दूसरे के साथ मन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता कि जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाओ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब वैराग्य इस प्रकार का होगा तो संसार हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम संसार से दूर रहना चाहेंगे हमेशा, और बाध्य है, समाज में रह रहे हैं तो जाना पड़ेगा। तो चलेगा, जल्दी से लौट आए। हाँ, अगर कहीं बाई चांस एक रात भी रहना पड़ जाता है तो मेरा डिप्रेशन और बढ़ जाता है कि मैं कहाँ आके फंस गई। अब क्या करें, अब ये तो बात होती है, इसमें कोई शक नहीं। ओके। ये आध्यात्मिक जीवन में वैराग्य बढ़ाने में, भगवान का स्मरण करने में सारा संसार जो है वो भयानक लगने लग जाता है। यस, दैट इज ट्रू। उसमें क्या करना है, तो फिर भी बनाए रखना, क्योंकि उधर जाएंगे तो भयानक ही चीज है और कुछ नहीं। वहां तो चांस ही नहीं। वही है कि वहां जाके भी सब लोग, उनको फील होता है कि तुम हमारी खुशी में महसूस, मतलब वहां जाके एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो वो सब बोल देते हैं कि फंक्शन में आए हो, आप मिक्सअप ही नहीं हो रहे, या आप ट्रू वो जॉय जो एक होता है वो वाला वर्डली वो भी नहीं अब एक्सप्रेस होता, झूठा भी। दैट इज ट्रू। क्या करोगे वो, अब मैं इसका उत्तर नहीं है बाबा, ये तो होने ही वाला है। ओके। महाराज जी, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, इट इज एवरीवेयर। एज एंड व्हेन वी प्रोसीड हियर, तो ये पीछे छूट ही जाता है और हम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। अब भगवान के लिए जाओगे, आगे जाओगे तो संसार तो छूटेगा। हाँ बिल्कुल। तो भगवान, जहाँ भगवान है वहाँ संसार नहीं रह सकता, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। बराबर जी महाराज, कहा है। तो जब भगवान की ओर जाओगे तो ये चीजें, समस्या सबको आएगी जी। बट मतलब अगर मन से ये होता है कि जैसे अगर कोई बोल भी दे गेस्ट जाना तो चलो दूर, अगर कोई बोल भी दे कि हमने आना है आपके पास, तो फिर सच में मैं तो ठाकुर जी को प्रे करूंगी, करती हूँ कि ठाकुर जी अगर तो वो बंदा मेरे लिए बेनिफिशियल है फिर तो आए, नहीं अदरवाइज ना आए, चाहे जितना मर्जी क्लोज हो। तो फिर बाद में गिल्टी फीलिंग होती है कि यार हम तो अतिथि देवो भव भी बोलते हो, तो मैं क्यों मन में ऐसी बात ला रही हूँ कि अगर वो बंदा मेरे मन को डिस्टर्ब करेगा या फैमिली, तो वो आए ही ना, चाहे जितना मर्जी क्लोज हो। मैं ये भी प्रार्थना कर देती हूँ, तो फिर गिल्टी भी होती है। अब भाई ऐसा है तो कहते हैं भगवान देखने का प्रयत्न करो, और क्या करोगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, नहीं होता। अब भगवान मतलब ये होता है कि जो आके जरा सा भी वो डिस्टर्ब करेगा, मुझे होता है कि ठाकुर प्लीज उनका और कहीं से काम बन जाए। मैं सच में ऐसे प्रार्थना करती हूँ अब कि उनका कहीं और काम बन जाए। दिलीप भाई आपको क्या कहना है? दिलीप भाई इसके बारे में आपको क्या कहना है? महाराज ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम आता ही है सामने, और इसको हम भाग भी नहीं सकते, इससे भाग भी नहीं सकते, सहन भी नहीं कर सकते। हम बड़े दुखी हैं, ना घर के रहते ना घाट के रहते, ये जो कहावत है। ये स्वामी यतीश्वरानंद जी के लेखों के का परिणाम हो रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, का परिणाम, और ये जूम मीटिंग के कारण ये चीज हो रही है। महाराज, these are very good signs, महाराज जी। वेरी गुड साइंस, वेरी गुड साइंस।
महाराज दो Actually- सॉल्यूशन है, यानी हैं? दो सॉल्यूशन है इसका। एक तो सब समय हाँ। चुपचाप रहने का, साक्षी भाव से देखते रहो, मतलब जो भी हमारे घर आए जितना जरूरत हो उतना ही बोलेंगे। और दूसरा है सब में किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना। मान लो यही हमारी परीक्षा है, अरे संसार से डिस्टर्ब नहीं होगा तो भगवान के पास कैसे जाओगे? उसमें तो बल्कि व्याकुलता और बढ़नी चाहिए। व्याकुलता बढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छी साइंस है। ये मैं जान के प्रसन्नता हुई कि हमारी ये जूम मीटिंग्स जो है उसका परिणाम हो रहा है। लोगों के मन बदल रहे हैं। सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, अब भगवान की तरफ मन लगाने की इच्छा हो रही है। ये तो होना चाहिए। चीजों का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं, मन ही मन अपने को पक्का करो, क्योंकि और जहां तक हो सके ये संसारी बंधनों से, संसारी कॉन्टेक्ट वगैरह से दूर रहने का ही प्रयास। जी ठीक है। हो Pranam गया, बंद Maharaj. करें? Hey, Maharaj, Pranam Thank you. Maharaj, can I ask you a question? हाँ बोलो। हाँ, सपना हाँ, बोल बोलो। रही हूँ। हाँ, actually, हाँ, बोलो। if something happens in the family, if कोई दुर्घटना अगर हो जाए, मृत्यु या कुछ दुखदायक, हाँ, so that time how to हाँ। maintain ourselves, because that time become very agitated and it's very difficult to do japa and meditate, puja. So what should we do practically that time to नहीं become? नहीं, वो प्रैक्टिकली क्या ये दैट इज वेरी नेचुरल। संसार में चीजें होती रहती हैं जी और ये चीजें सभी लोग को प्रभावित करती हैं। माँ शारदा, खैर वो लोग तो बहुत ऊंची स्थिति में रहते थे। वो लोग बाहर से लगता था कि वे प्रभावित हुए, लेकिन अंतर से प्रभावित नहीं होते थे। तो ऐसी चीजें होंगी, यही देखना है कि ये प्रभाव लंबे समय तक नहीं बना रहे। अच्छा अच्छा कुछ लोग जो है तो कुछ मृत्यु हो गई तो वो 15 दिन तक रोते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा तो उस- कष्ट प्रभाव, थोड़ा तो कष्ट आपके जीवन में होगा, लेकिन अधिक न होवे, इतना ध्यान। अच्छा लंबे महाराज, समय उस तक नहीं टाइम होवे, ज्यादा गहरा। उस टाइम स्वाध्याय या विचार, स्वाध्याय या विचार, these are very useful for that हाँ, time. यस, बोथ ऑफ देम बोथ विल बी बहुत बहुत यूजफुल होंगे, प्रोवाइडेड यू Yes. गेट चांस। Yeah. मौका मिले तो जरूर स्वाध्याय करना है, विचार जी। करना, जी वचनामृत लेके पढ़ लेना, उसमें यही Yes. चीजें मिल जाएंगी आपको। जी ओके थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। हो गया सबका? महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, आशीष अग्रवाल बोल रहा हूँ महाराज जी। अब बोलो, कुछ प्रश्न? और गुड महाराज जी ज्वाइन मुझे किया था? हाँ ज्वाइन किया वो महाराज जी। हाँ, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मांसाहार खाने में कोई पाप नहीं है या पाप है मांसाहार खाने में? मांसाहार ऐसा है कि भाई आइडियली तो नहीं खाना ही अच्छा है। बराबर है। आइडियली तो ये है कि किसी को मार के खा रहे हो, ये बहुत खराब चीज। अब कुछ कल्चर्स में खाते हैं, वेस्टर्न लोग खाते हैं, ब्रिटिश लोग खाते हैं, कुछ जाति में खाते हैं, तो वो बात दूसरी होती है, लेकिन आइडियली इट शुड बी अवॉइडेड। ये विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने किताब में इटर्नल कंपेनियन में बोलते हैं कि भाई आप शाकाहार भी खा रहे हो तो वहां पे तो जीवों की हत्या हो रही, तो मांसाहार खाने में ऐसा कोई पाप नहीं है। तो वो बड़ा विरोधाभास मन में होता है। ये आइडियली क्या है? स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि आप बहुत मच्छी खाओ, बहुत मांस खाओ। एक समय में स्वामी विवेकानंद ने भी भारत के लोगों को कहा था कि आपके अंदर रजोगुण की कमी है तो आप मांसाहार खाओ, इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने वो भी ये कहा है, यानी वो एक अपवाद के रूप में कहा है कि क्योंकि भारत के लोग दुर्बल हैं, उन दुर्बल लोगों के लिए कहा था कि अरे अब तुम ये भी नहीं खाओगे तो आप विदेशी लोगों का सामना नहीं कर सकते, इस दृष्टि से कहा। और अभी मैंने एक न्यूज आके पेपर में, अचानक में तो देखता नहीं, पेपर में है कि इंडिया के वो जो किया है, तो इंडिया के जो लोगों की हाइट जो है वो कम हो गई है, जबकि सारे दुनिया के लोगों की हाइट जो है, बच्चों की हाइट जो है वो एवरेज बढ़ गई।
मतलब ये कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी तो है, और ऐसे में अगर आप मछली और मांसाहार को बंद कर देते हो तो और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन कर दिया है, लेकिन प्रोटीन मिलना चाहिए, खाने को मिलना चाहिए, दैट इज द थिंग। तो ये एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन ऐसे हम लोग भी जानते हैं जो बेसिकली बंगाली थे, मांसाहार थे, वो लोग संत जब हुए तो उन्होंने बाद में खाना पीना ये सब बंद कर दिया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते थे कि भाई ये उससे रजोगुण बढ़ता है, मन चंचल होता है। महाराज मेरा जो और प्रश्न यही है, नहीं, वो एक बेसिकली इट इज, ये भोजन जो है ना वो एक रजोगुणी भोजन है, वो आध्यात्मिक जीवन के साथ चलता नहीं है। अब बचपन से कोई अगर मछली खा रहा है तो उसके लिए कोई चीज खराब नहीं लग सकती, लेकिन बेसिकली वो रजोगुणी है। प्रश्न क्या है? महाराज शारीरिक दृष्टि से नहीं, जैसे इसमें पाप है क्या, इस दृष्टि से मैं पूछ रहा था। शारीरिक दृष्टि से तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें चंचलता आती है, लेकिन इसमें पाप है क्या? जैसे अगर कोई शाकाहार खा रहा है और कोई मांसाहार खा रहा है। हाँ, वो ऐसा किसी ने, जैसे ब्रह्मानंद जी तो क्या है कि वो उन्होंने, अरे भाई खाने पीने में, चलने फिरने में तो प्राणियों की हत्या होती ही है, तो इस दृष्टि से तो यहाँ तक कह सकते हैं कि जो लोग अहिंसा का पालन करते हैं, उच्चतम अहिंसा का, तो अपने मुंह में पानी, मुंह के ऊपर कपड़ा रखते हैं जिससे वाणी में बोलूं तो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया न मरें, और चलते फिरते भी सावधान रहते हैं, और अपना चलना फिरना भी कम कर देते हैं कि जिससे मेरे सर्वाइवल के लिए प्राणियों की हत्या न होवे। तो एक अदर एक्सट्रीम तो ये भी है, तो उस एक्सट्रीम की दृष्टि से आपको देख लेना चाहिए। आप जिस लेवल पे है, एक मजदूर है, वो तो संत नहीं है, उसको, वो अगर मांसाहार खाता है तो उसके लिए कोई पाप नहीं होता, लेकिन जो कोई संत है, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसके लिए पाप हो जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। तो ये प्रश्न है इस प्रकार से, अगर सबके लिए आपने बना दिया है कि मांसाहार खाना पाप है, तो बेचारा मजदूर, उसको नहीं मिलता है, उसको काम मेहनत करनी पड़ती है, अभी तक खा रहा था, उसको बंद करना पड़ेगा। तो जैन लोग तो उसको मांसाहार को बिल्कुल पाप ही मानते हैं, लेकिन मैंने उसको ये सारे उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उसको मैंने डिस्कस कर। अब आपको देखना है, इन्होंने ये भी किस से है, वो आपको अपना इंडिविजुअली देखना है, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करने की, लेकिन उसको एक जनरल रूल बनाने का प्रयत्न मत कीजिए। बिल्कुल सही है भैया, चलो मुबारकें बहुत बहुत महाराज। ये कांग्रेचुलेशन किया गया है कि ठीक है दोनों भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दही और दूध खाना, दही और दूध खाना भी तो मना कर दिया गया है, दूध पीना। किसने? ये वेगन, तो वेगन में जो रहते हैं वेगन, जो इन्होंने एक धर्म पाला है कि जिसके अंदर जापान में भी ये कहा गया है कि दही में भी कीटाणु रहते हैं, जीव जंतु, तो ये नहीं लेना चाहिए। तो भाई अब मैं नहीं जानता बाबा, ये मैं नहीं जानता। अच्छा जी, चलो। अच्छा, वेजिटेबल में तो है ही प्राणी, हाँ, तो मत खाओ। जमीकंद नहीं खाते जैन लोग, जमीन से निकालना पड़ता है तो उसमें प्राणी बंद होते हैं। हाँ। अब हवा खाना है, हवा भी तो नहीं चलेगी, हवा में तो प्राणी रहते हैं। हाँ, उसमें भी जंतु रहते हैं। तो बस ठीक है, ये इंडिविजुअल प्रश्न है भाई। सीधे ठाकुर हो गया के पास चले प्रश्न, जाए। बंद करें। जी महाराज, प्रणाम। महाराज जी, स्थापकाय च धर्मस्य कृष्णाय ते नमः। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण।